ओके, लास्ट टाइम हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे ना। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की थी हमने, इज इट राइट? कौन सी की थी लास्ट टाइम? लेट मी जस्ट चेक। वो इमेजिनरी वाला था। अच्छा, इमेजिनरी वाला था, ठीक है ठीक है। ओके फाइन फाइन। ओके, सो लेट अस डू द नेक्स्ट थिंग। ओके, so linear differential equation with constant coefficients. मैम स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। ओह, अच्छा अच्छा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, यस मैम। ओके, ऑल राइट। सो linear differential equations with constant coefficients. Okay, so if you have an equation of the form let us say x square d2 by over dx square plus px dy by dx plus q by equal to, let us say, some on the right hand side you have some function of x. Okay, so here p and q are constants, okay, and x is a function of x, and this is also called homogeneous linear differential equation, okay, or linear differential equation with constant coefficients. So here p q are constants. Is a function of x. ओके, तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस को हाउ टू सॉल्व। ओके, तो हम क्या करते हैं कि वी मेक ए सब्स्टिट्यूशन, and what is that substitution? So in this type of equation the important substitution is x equal to e to the power z. Okay, x equal to e to the power z. So here to solve these equations an important substitution is x equal to e to the power z. ये इसमें यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं. सो यू नो दिस, इफ यू टेक log then this is log e, then this cancels, so therefore z equal to log x. ये एक important substitution होता है. then this equation, let us call this equation number 1. then your equation number 1 is transformed into an equation with constant coefficients, changing the independent variable from x to z. यहाँ पर independent variable हमारा कौन सा है? x. Okay, so with this substitution, okay, your equation changes from this independent variable x changes to z. Okay, so the equation 1, or let me write down, then equation 1 is transformed into an equation with constant coefficients
changing the independent variable from x to z. Okay, thus if, let us say, x equal to e to the power z, okay, then or z equal to log x. Now if you differentiate it with respect to x, then this is dz over dx equal to 1 by x, right? Let me call this a. Okay, now if you write down dy by dx, therefore dy by dx, this thing equal to dy by dz times dz by dx, and now dz by dx you can write this thing from a above equation, this thing equal to 1 by x dy by dz, right? So therefore this implies, अब x को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाओ, then this is equal to x dy by dx equal to dy by dz. So x dy by dx you can write dy by dz, and now we define this capital D equal to d by dz. So I can also write this thing, okay, this thing can be also written as d by, where what is d here? Capital D is now d by dz. Okay, so again if you write down d2 by over dx square, तो क्या हो जाएगा ये d2 by over dx square, this is equal to d by dx, इसको इस तरह से लिख सकते हैं d by dx times dy by dx, and dy by dx यहाँ पर अभी तुमने देखा कि this is equal to क्या था ये 1 by x dy by dz. So you can write it d by dz, here you can write d by dz, इसको मैंने क्या किया d by dx जो यहाँ लिखा हुआ है इसको मैंने लिखा d by dz, and I can write this dz by dx, right? Now again dy by dx की मैं वैल्यू रख देती हूँ. So if I put value of dy by dx, then this is equal to d by dz, and यहाँ से क्या आ जाएगा dy by dx की जगह 1 by x dy by dz, dy by dz, right? And यहाँ पर dz by dx क्या है हमारा 1 by x, dz by dx हमारा क्या है 1 by x, सॉरी हाँ 1 by x है ना हमारा dz by dx. Okay, so this is 1 by x, here you have 1 by x, this is 1 by x, this thing, right? And now again you can write down it as 1 by x, this is equal to 1 by x को तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, ये बाहर है, okay, ये तो बाहर है इससे, तो 1 by x, and यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ d by dz 1 by x dy by dz. Now it's a product of two functions, so differentiate it with respect to z. So if you differentiate it with respect to z, तो जैसे हम product of two functions का करते हैं, so first function into differentiation of second, okay, plus second function into differentiation of first. So let us do it. तो ये क्या आ जाएगा आपका, this is equal to 1 by x को मैं as it is बाहर लिख देती हूँ. Now first function, so this is 1 by x, and second function हमारा क्या आ गया d2 by over dz square, okay, plus second function
इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो इसका फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करो तो ये क्या आ जाएगा माइनस एक्स टू द पावर माइनस टू, ओके, और क्या आ जाएगा हमारा डी एक्स बाई डी जेड, ओके, एंड डी बाई डी जेड एज इट इज आ गया, ओके। नाउ डी एक्स बाई डी जेड इज नथिंग बट एक्स, ये चीज हमारी क्या है x, so therefore this thing equal to, now this thing equal to 1 by x, 1 by x, और यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म आई राइट डाउन एज इट इज d2 बाई ओवर डी जेड स्क्वायर, माइनस यहाँ से आ गया हमारा 1 ओवर एक्स स्क्वायर, 1 ओवर एक्स स्क्वायर तो ये लिख दिया x टू द पावर माइनस टू, एंड डी एक्स बाई डी जेड अब हमारा क्या है x, यहां से देखो डी जेड बाई डी एक्स क्या है हमारा x, कहाँ गया ये, ओके, डी जेड बाई डी एक्स इज x, इक्वेशन नंबर ए में देखो, ओके, तो x आ गया एंड दिस इज डी बाई डी जेड एज इट इज, ओके, सो यू कैन राइट डाउन इट एज ये 1 बाई एक्स यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पर आ गया आपका डी टू वाई ओवर डी जेड स्क्वायर एंड माइनस डी बाई डी जेड, राइट। अब एक्स स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड पर अगर ले जाएं देन दिस इज इक्वल टू, सो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर डी टू, क्या था वो डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा d2 बाई ओवर डी जेड स्क्वायर माइनस डी बाई डी जेड। अब डी बाई डी जेड को हमने क्या डिफाइन किया हुआ था कैपिटल D, सो दिस इज इक्वल टू d2 बाई माइनस डी बाई, राइट, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं d2 माइनस डी बाई d2 माइनस डी बाई, सो देयरफॉर इसमें से d आउटसाइड ले सकते हैं, सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी माइनस 1 बाई, सो एक तो ये आ गया आपका, इसी तरह से अगर आप एक्स क्यूब निकालेंगे तो आपका आ जाएगा डी माइनस 1 डी माइनस 2 बाई, ओके, सिमिलरली यू कैन राइट डाउन फॉर अप टू एक्स टू द पावर n, ओके, सो बट हमें सेकेंड ऑर्डर है तो मैं यहाँ तक ही लेती हूँ, सो एक ये आ गया आपका एक्सप्रेशन दैट एक्स स्क्वायर डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी माइनस 1 बाई, वेयर रिमेंबर दैट नाउ d इज योर d बाई डी जेड हियर, here d is d by dz, इसका मतलब क्या हुआ that we can write down this equation, और ये हमने निकाल ही लिया था, यहाँ पर इसको भी निकाल लिया था x d by dx को भी हमने निकाल लिया, okay, so we can write down our equation number 1, okay, so the equation number 1 then you can write down, thus if we put so thus equation 1 becomes, ये क्या आ गई इक्वेशन 1 हमारी, के वैल्यू रख दो, तो इक्वेशन 1 हमने क्या लिया था, दिस बाद एक्स स्क्वायर डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी बाई डी एक्स प्लस क्यू बाई इक्वल टू एक्स एक्स, सो इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, के तो ये क्या आ गया, आप ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन 1 डी माइनस 1 डी माइनस 1 एंड क्या था वो डी माइनस 1 बाई के प्लस पी डी बाई प्लस क्यू बाई इक्वल टू, यहाँ पर कोई फंक्शन आ जाएगा आपका z का, ओके, z इज ए फंक्शन ऑफ z, ओके, तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन किस तरह की बन गई, दिस इज एफ डी इक्वल टू z. So here what you have done, you have changed your equation from you have changed your independent variable x to z, okay, and now you can solve this equation.
Okay, so let us solve this equation. So we can solve this equation now by the previous method. So let us take example से और भी अच्छी तरह समझ में आता है. Okay, so I take few examples. Example, let us say x square d2 y over dx square plus y equal to 3x square. Okay, so हमारे पास इस तरह की इक्वेशन है कोई एंड हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है. ओके, सो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, x इक्वल टू ई टू द पावर जेड. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू ई टू द पावर जेड. अच्छा, इफ यू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू ई टू द पावर जेड, so substitute x equal to e to the power z. okay, and अभी x equal to e to the power z सब्स्टिट्यूट करा था तो आपने देखा था कि x स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आपका क्या आ गया था, डी माइनस वन बाई, राइट. सो यू कैन राइट डाउन इट एज, इसको भी कुछ इक्वेशन बोल देती हूँ. सो लेट अस कॉल इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या आ जाएगी, डी माइनस वन बाई, प्लस ये बाई तो एज इट इज आएगा, तो बाई इक्वल टू राइट हैंड साइड पर क्या आएगा, यहाँ पर है x इक्वल टू ई टू द पावर z. तो यहाँ पर x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर है तो हमारा क्या आ जाएगा 3 ई टू द पावर 2z, राइट. तो हमारी यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन अब कैसे बनेगी, यू जस्ट राइट डाउन इट, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हुई हमारी यहाँ पर, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज के डी माइनस वन, और यहां से एक प्लस वन बाई इक्वल टू जीरो, राइट हैंड साइड पे जीरो लिखते हैं हम. ओके, तो जीरो आ गया ये. अब जस्ट सॉल्व इट. तो ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन, डी स्क्वायर माइनस डी, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन इक्वल टू जीरो. ओके, नाउ गेट रूट्स. तो रूट्स आ जाएंगे इसके. रूट्स आने से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं. सो राइट डाउन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ओके, तो ये क्या आ गया आपका, ये यहाँ पर क्या आएंगे, इमेजनरी रूट्स आएंगे. तो इमेजनरी रूट्स क्या आए बताओ, d इक्वल टू ये माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac से दिस इज 1 प्लस माइनस आई स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, राइट. सो देयरफॉर हमारे दो रूट्स, सॉरी इसमें इमेजनरी रूट्स आ गए. एंड इमेजनरी रूट्स के अगर इमेजनरी रूट्स आते हैं तो हम क्या करते हैं, वी कैन राइट डाउन इट इन एनी वन ऑफ द फॉर्म. सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तीन फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, आइदर साइन की फॉर्म में और कॉस की फॉर्म में और कंबाइंड फॉर्म में. सो राइट डाउन. ओके, सो यहाँ पर क्या आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज equal to c1 e to the power alpha x. so this is 1/2. okay, यहाँ पर x की जगह अब क्या आएगा, z, राइट. हमने z लिखा है अब x की जगह, तो z आएगा यहाँ पर. ये चीज याद रखने की है यहाँ पर. नाउ cos ऑफ बीटा x, के तो बीटा क्या है हमारा √3/2. के x की जगह क्या आएगा हमारा z प्लस c2. समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमने क्या किया कि d2 ये एक्स स्क्वायर d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू रख दी, एंड बाई एज इट इज आ गया. राइट हैंड साइड को उसको z की फॉर्म में लिख दिया. उसके बाद हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली. अब क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की जगह z है, इसलिए जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे तो वहां ये आपको याद रखना है कि वो पहले z की फॉर्म में आएगा एंड देन at the end you have to write down, you have to again change it in x. okay, so अभी मैं z की फॉर्म में ही रख रही हूँ. नाउ फाइंड आउट पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल भी जैसे हम निकालते थे बिल्कुल प्रीवियस केसेस इतने सारे देखे आपने e टू द पावर z के, सिमिलर मैनर में यहाँ करना है. ओके, सो ऑल्सो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करो. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ गया इन दिस केस, दिस इज इक्वल टू 1/f(d). तो d क्या है हमारा, डी स्क्वायर माइनस डी क्या था वो +1 और क्या है हमारा राइट हैंड साइड पर 3 ई टू द पावर 2z. ओके, एंड ये केसेस आपने पहले देखे ही हुए हैं. सो जस्ट डू इट. सो दिस इज इक्वल टू 3 ओवर
यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रख दो a की। a क्या है हमारा यहाँ पर 2, सो 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 and e to the power 2z, right? So therefore it is equal to e to the power 2z, e to the power 2z ये आ गया आपका। ओके, सो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी आ गया। नाउ यू कैन राइट डाउन योर सॉल्यूशन। सो द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया था हमारा c1 e टू द पावर क्या था वो 1/2 z 1/2z के cos ऑफ बीटा z प्लस c2 के, एंड ये यहाँ पर आ गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज e टू द पावर 2z। अब हमें क्या करना है कि फिर से z की वैल्यू रखनी है, बिकॉज हमें आंसर किस में लिखना है, लास्ट में x एंड y में। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन x एंड y में दिया है, सो आंसर वी हैव टू राइट डाउन इन x एंड y। तो यहाँ पर फिर से हमको z को x में लिखना है, तो जस्ट लिख दो अब c1 e टू द पावर क्या है वो 1/2 के, एंड वो क्या था z की जगह log x के, सो x टू द पावर 1/2 हो जाएगा। तो सी एंड दिस इज cos √3/2 के z इक्वल टू log x, सो log x प्लस c2 एंड प्लस e टू द पावर 2 log x, एंड नाउ अगेन सिंप्लीफाई इट, सो दिस इज इक्वल टू c1 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा x टू द पावर 1/2, तो x टू द पावर 1/2 cos ऑफ बीटा x, सो दिस इज log x प्लस c2 प्लस यहाँ पर log x स्क्वायर e टू द पावर log x स्क्वायर, सो दिस इज x स्क्वायर। ओके, सो ये इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। यहाँ सिर्फ याद रखने वाली बात ये है कि आपको सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन आपको करना है x इक्वल टू e टू द पावर z, एंड देन यू कैन सॉल्व इट इजीली बाय द प्रीवियस मेथड। तो कोई भी एक फॉर्मूला लगेगा जो भी राइट हैंड साइड पे हो, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन अप्लाई फॉर्मूला। ओके, सो नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जांपल। दिस इज x स्क्वायर d2 over dx स्क्वायर minus 2 equal to x square plus 1/x। सो यू कैन सी फ्रॉम हियर कि ये भी बहुत फेमिलियर सा है, आप इजीली कर सकते हैं। सो जस्ट डू इट, बताओ क्या आया। ओके, सो मेक दिस सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू e टू द पावर z। सो x इक्वल टू e टू द पावर z रखोगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा d -1 बाई -2 इक्वल टू x स्क्वायर है यहाँ, तो e टू द पावर 2z है, प्लस यहाँ पर क्या है 1/x है, तो e टू द पावर -z आ जाएगा, राइट। सो once you have written down this, then you can find auxiliary equation. So auxiliary equation in this case is ये क्या आ जाएगी आपकी auxiliary equation। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो यहीं पर भी, तो d स्क्वायर माइनस d माइनस 2 के बाई इक्वल टू e टू द पावर 2z प्लस e टू द पावर माइनस z लिख लेती हूँ मैं। ठीक, सो वंस यू हैव रिटन डाउन दिस, देन यू कैन फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो राइट डाउन ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड देन गेट रूट्स। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई हमारी दिस वन, एंड हमारे रूट्स क्या आ गए यहाँ पर d -1, सो d +1 एंड d -2 okay equal to 0. So this is d equal to -1 and d equal to 2। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें राइट हैंड साइड में? No. Okay, so good. So now write down complementary function. So complementary function is c1 e to the power minus z। फिर से याद रखना है कि x की जगह हमें हमेशा z लिखना है यहाँ पर आंसर में फॉर द टाइम बीइंग, फिर लास्ट में हमें z को चेंज करना है। ओके, सो
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज c1 e टू द पावर माइनस जेड प्लस c2 e टू द पावर 2z। ये हमारा आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। एंड देन तुम चाहो तो यहीं पर भी इसको चेंज करके लिख सकते हो या बाद में लिख सकते हो, इट इज अप टू यू। ओके, सो c1 1 बाई एक्स प्लस c2 एक्स स्क्वायर, c1 एंड यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस c2 एक्स स्क्वायर बाई सब्सटीट्यूटिंग z इक्वल टू लॉग एक्स। So ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। एंड देन राइट डाउन पर्टिकुलर इंटीग्रल। यू नो इन दिस केस हाउ टू राइट डाउन पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालो, बताओ क्या आ गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल इन दिस केस इज, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1 ओवर एफ डी, डी क्या था हमारा, डी माइनस 2, सो डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2, राइट। ये था हमारा 1 ओवर एफ डी। एंड राइट हैंड साइड पर हमारी क्या थी, e टू द पावर 2z प्लस e टू द पावर माइनस जेड। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पर तुम्हारा ये क्या है, d प्लस 1 d माइनस 2 करके आया था ना। तो यू कैन सी फ्रॉम हियर कि इफ यू सब्स्टिट्यूट d इक्वल टू 2 then also it is 0, and if you put d equal to minus 1 then also it is 0, right? So in both the cases it is a in both the terms here and also here it is a case of failure. तो in this case हम क्या करते थे, अगर हमारा इस तरह का केस होता था तो हम क्या करते थे कि we multiply by x, differentiate the denominator with respect to d, and then we substitute d equal to a. So हम क्या करते हैं, we multiply by z, यहाँ पर x की जगह क्या है हमारा z, so we multiply here by z, okay, differentiate the denominator with respect to d, तो d के with respect करो तो 2d minus 1, okay, and क्योंकि both के cases में ही failure है तो I can write it together, so e to the power 2z plus e to the power minus z। अगर अलग अलग होता कि एक के केस में फेलियर का केस होता है एक में नहीं होता तो देन हम दो टर्म अलग अलग लिख के कर सकते थे, बट क्योंकि यहाँ पर दोनों के केस में ही केस ऑफ फेलियर है इसलिए हमने यहाँ पर टुगेदर लिख लिया ब्रैकेट में, सो नो प्रॉब्लम। एंड नाउ यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट टू टर्म्स, सो दिस इज इक्वल टू के जेड एंड e टू द पावर 2z के केस में यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 ओवर 4 माइनस 1, राइट, e टू द पावर 2z प्लस z, एंड यहाँ पर 1 ओवर यहाँ पर माइनस 1 है, राइट, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस 3 e टू द पावर माइनस z। सो यही बस आपका वो हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ यू चेंज z टू x, सो लेट अस चेंज z टू x, ओके। सो ये क्या आ गया आपका z बाई 3, दिस इज इक्वल टू z by 3, okay, मैं बाहर ले सकती हूँ एंड आई कैन राइट डाउन e टू द पावर 2z प्लस माइनस e टू द पावर माइनस z लिख सकती हूँ। एंड नाउ यू जस्ट राइट डाउन इट्स वैल्यू, सो दिस इज 1 by 3 log x, ये आ गया आपका z की जगह log x, एंड यहाँ पर ब्रैकेट में आपका आ गया x स्क्वायर माइनस 1 by x, राइट। So ये particular integral आ गया and then complete solution you know how to write down in complementary function plus particular integral, so just write down value of complementary function and value of particular integral and this would be your answer, ठीक है। So इस तरह के questions में ज़्यादा problem नहीं है, you can do these questions easily, okay। Let me take maybe one more example. Suppose you have ठीक है, Yes, ma'am. okay, now if you have your equation, differential equation of the type, let us say x square d2 by over dx square plus x dy by dx plus by equal to sin log x square, okay।
इस तरह का हमारा क्वेश्चन है. देन वी वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो लेट अस सॉल्व इट. कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, सो अगेन यू नो how to solve this question, but you want to solve this question, and therefore you have to substitute x equal to e to the power z. So I substitute x equal to e to the power z, and if you substitute x equal to e to the power z, then you can write down x square d2 by over dx square in terms of d, where capital D is defined as d by dz. So let us write down. Okay, so ये first term से क्या आ गया? d minus 1 बाई, ओके, प्लस सेकेंड टर्म से क्या आएगा हमारा? डी बाई, एंड थर्ड टर्म में सिर्फ बाई है, सो बाई इक्वल टू साइन, ओके, यहां पर क्या है हमारा? लॉग एक्स स्क्वायर, सो लॉग ई टू द पावर 2z, एंड लॉग एक्सपोनेंशियल दे कैंसिल ईच अदर, सो देयरफॉर इट इज साइन 2z, राइट. सो राइट हैंड साइड पर आपकी आ गई साइन 2z, एंड लेफ्ट हैंड साइड पर यू कैन सिंप्लीफाई नाउ. सो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आ गया? डी माइनस 1 प्लस यहाँ से d प्लस 1, एंड बाई हर एक में कॉमन है, सो आई कैन राइट डाउन इट आउटसाइड. एंड यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आ गया आपका साइन ई टू साइन 2z, राइट, ये आ गया आपका. And now again you simplify it and then write down. Okay, तो ये क्या आ गया आपका? d square plus 1, dd तो कैंसिल हो जाएगा, so d square plus 1, okay, by equal to sin 2z. so आपकी ये differential equation आ गई अब, right. and once you have written down this differential equation, then write down auxiliary equation, then roots, find out roots, and then write down complementary function and particular integral, and you know in this case how to write down. Okay, so let us write down now. Auxiliary equation हमारी क्या आ गई? Auxiliary equation is d square plus 1 by equal to 0. Okay, and this implies d square plus 1 equal to 0. So हमारे roots क्या आ गए यहाँ पर? d equal to plus minus i. Okay, and once you have written down roots, you can just write down your complementary function in any one of the form. So let us write down complementary function. Okay, so c1, so e to the power alpha x, then c1 cos of beta x. so beta यहाँ पर 1 है, तो मैं इसको लिख देती हूँ कि cos z plus c2 sin z. okay, इस फॉर्म में मैंने लिख दिया. इट इज अप टू मी, मैं किसी भी फॉर्म में लिख सकती हूँ. ओके, तो z की फॉर्म ये c1 सॉरी cos एंड sin की फॉर्म में दोनों में लिख दिया मैंने. अब you have to write down it in terms of x and y, then you have to change z. so this means this is cos log x, okay, plus c2 sin log x. ये तो आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. नाउ लेट अस राइट डाउन पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इन दिस केस आपको पता है कि कैसे लिखते हैं. तो डी स्क्वायर क्या था? वो डी स्क्वायर प्लस 1, एंड राइट हैंड साइड पर था हमारा साइन 2z. तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. ये इससे डिफिकल्ट तो अभी आपने किए ही थे. सो जस्ट डू इट. तो यहाँ क्या करते हैं हम? डी स्क्वायर की जगह क्या रखते हैं हम? माइनस ए स्क्वायर, राइट. सो दिस इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर a क्या है हमारा? 2. सो माइनस एंड देन 4 प्लस 1 एंड साइन 2z. सो देयरफॉर इट इज इक्वल टू माइनस 1/3 साइन 2z, राइट. एंड देयरफॉर this is your particular integral which you can write in terms of x. So this is equal to sin log x square. So therefore particular integral you get, particular integral is minus 1/3 sin, okay, and यहाँ से आ गया आपका 2 log x, right, और log x square. So ये 2 log x आ गया आपका. And now you can write down complete solution. So complete solution is complementary function plus particular integral. So just write down. Okay,
सो बाई इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो इस तरह के क्वेश्चंस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि यू कैन डू दीज क्वेश्चंस वेरी इजीली। ठीक है, ये समझ में आ गए। देन आई कैन डू द इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू दिस फॉर्म। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट आस्क मी, अदरवाइज आई गो फर्दर। इक्वेशंस रिड्यूसिबल मतलब वो हमेशा एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा डी स्क्वायर के आगे। सॉरी, फिर से बोलो। मैम जैसे ये जो क्वेश्चन का टाइप है जिसमें डायरेक्ट हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं मैम, ये तभी कर रहे हैं ना जब डी स्क्वायर वाई बटा डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर के आगे एक्स स्क्वायर हो। हाँ, उसके उधर एक्स स्क्वायर डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर करके हो, तब भी आप कर सकते हैं ना। अगर कांस्टेंट को है तब तो वो कांस्टेंट वाले अलग करवाए ही हैं बहुत सारे, है ना। तो यही पहचान धीरे धीरे आती जाती है आपको कि कहाँ क्या कौन सा लगना है, आपको माइंड में रजिस्टर होता जाएगा। फिर आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में रूल रजिस्टर होने लगेंगे, एंड जब आपके माइंड में रूल रजिस्टर एक तरह से होने लगेंगे, फिर आप जब देखेंगे तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि कौन सा रूल इसमें लगा दूं मैं। Okay, so now let us come to the equations which are reducible to this form. Okay, so equations reducible to linear differential equations. Okay, or equations reducible to homogeneous form. So if we consider equation of the type, let us say, so consider equation of the type, okay, let us say a plus bx whole square d2 by over dx square, okay, plus p a plus bx dy by dx plus q by equal to some function of x on the right hand side. Okay, so here p and q these are constants, and a and b they are also constants. Okay, so p and q are constants. Now in this type of equation, what do? Here we substitute here the substitution is x equal to a plus bx equal to, let us say, u. Okay, so here if we make this substitution a plus bx equal to u, okay, then what happens? Then you can write this dy by dx equal to, जैसे हमने पहले लिखा था अभी, तो हमने कैसे लिखा था dy by du, वहाँ पर z लेकर लिखा था, तो सिमिलर मैनर पे यहाँ पर मैं लिखती हूँ। सो dy by du एंड यहाँ पर आ गया आपका du by dy by du by dx। ओके, अब du by dx यहाँ से क्या आ जाएगा? इफ यू लुक एट इट, a प्लस बी एक्स को हमने u एज्यूम किया है, राइट। सो हमारा यहाँ पर du, इफ यू डिफरेंशिएट u तो क्या आ जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू x, देन यहाँ पर b आ जाएगा ये, राइट। सो ये जो du by dx है, दिस इज इक्वल टू b, राइट। सो b dy by du आ गया आपका, राइट। Similarly, if you write down d2 by over dx square, this is equal to, ये क्या है हमारा dy by dx and dy by dx, okay, and dy by dx को, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं d by du, okay, and dy by dx को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ as it is, and then du by dx लिख सकती हूँ, okay,
एंड डी यू बाई डी एक्स हमारा क्या था, b. ओके, सो मैं b लिख देती हूँ यहाँ पर. सो दिस इज इक्वल टू d बाई डी यू, एंड यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स की जगह हमारा क्या आ गया था, dy बाई डी एक्स की जगह हमने लिखा था यहाँ पर. अभी इस इक्वेशन से मैं इसको कोई नाम दे देती हूँ, क्या बोलूँ इसको लेट अस से 1, इसको 2. ओके, सो इक्वेशन 2 से इफ यू लुक एट इट, तो देन दिस इज b dy बाई डी यू. अभी बताती हूँ. ओके, सो देयरफॉर अभी फिर से बता रही हूँ, अभी रुक जाओ. दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर d2 बाई ओवर डी यू स्क्वायर. हाँ, अब बताओ क्या पूछ रहे हो तुम, बोलो बच्चे. सेकंड स्टेप में एक सेकेंड, d2 dx स्क्वायर ये सेकंड वाले में ना जो अभी कर लिख रही हूँ, थर्ड मींस थर्ड इक्वेशन से पहले वाली लाइन. यस मैम, यस मैम. ओके, तो यहाँ तक पहला सेकंड इक्वेशन तक तो पता चल गया तुमको. यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, इसको लिख दिया dy बाई डी यू टाइम्स डी यू बाई डी एक्स, राइट. तो एंड डी यू बाई डी एक्स को इस इक्वेशन से, इसको इक्वेशन नंबर आ से इफ यू लुक एट इट, देन डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू बी आएगा, राइट. सो यहाँ पर मैंने b रख दिया एंड dy बाई डी यू रख दिया. अब d2 बाई ओवर dx स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं d बाई डी एक्स. फिर ये मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, देन मे बी इट्स बेटर. ये ले लेती हूँ ग्रीन. तो देखो पहली स्टेप में तो क्या किया कि इसको सिर्फ dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स बाहर लिख दिया, dy बाई डी एक्स को यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया, ये वाला स्टेप आ गया, राइट. अब मेरे को इसको u की फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको लिखती हूँ d बाई डी यू. इस dx की जगह मैं लिखती हूँ du, और du यहाँ ऊपर लिख देती हूँ. तो du बाई डी यू तो 1 होता है ना, तो ये d बाई डी एक्स हो गया, ठीक है. तो ये और du बाई डी एक्स की जब वैल्यू रखोगे, फिर से यहाँ पर इसकी वैल्यू रखोगे तो b आ जाएगी ये वाली, और इसकी वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 2 से रख दी. समझ आ गया? रिपीट करना समझ नहीं आया मेरे को. फिर से लिखती हूँ और तुम समझते जाओ. सेकंड स्टेप के बाद में हाँ, मैं फिर से लिख रही हूँ जिससे कि तुम्हें फिर से समझ में आए, नहीं तो फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा. इसमें फिर से काटा पीटी करूंगी. तो देखो मैं यहाँ से मिटा रही हूँ, इसको फिर से लिख रही हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए. लेट मी राइट डाउन. ओके, देखो ये सिंपल है, जैसे हम लोग करते हैं. तो कैसे करते हैं इसको, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, ये d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को, अरे पेन क्यों नहीं आ रहा भाई, d बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? यस मैम, लिख सकते हैं. अब मुझे लिखना है u की फॉर्म में, तो मैं इसको क्या करती हूँ, d बाई डी यू यहाँ लिख देती हूँ, एंड dy बाई डी एक्स को मैं एज इट इज़ लिखा रहने देती हूँ, ठीक है. एंड du बाई डी एक्स को मैं ऐसे लिख देती हूँ. क्यों लिखा है? क्योंकि ये d बाई डी एक्स है ना, तो अब d बाई डी एक्स ही हो गया ना, du बाई डी यू तो हट जाएगा. यस मैम, है ना. अब बस du बाई डी एक्स जो ये है हमारी, ये वाली चीज़ du बाई डी एक्स, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, यहाँ से इफ़ यू डिफ्रेंशिएट इट, तो ये du बाई डी एक्स की जगह b आ जाएगा. तो यहाँ पर इसकी जगह मैंने रख दिया था b, राइट. और ये जो है हमारा बीच का पोर्शन, ये वाला, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, इक्वेशन नंबर 2 से, यहाँ दिस इम्प्लाइज b dy बाई du, राइट. यही था ना. तो इसको बस मैंने सामने रख दिया था, और क्या किया था, कुछ नहीं, बस इसको मैंने सामने जब रखा तो ये आ गया d बाई डी यू, ओके, एंड यहाँ पर आ गया b, एंड ये आ गया आपका dy बाई डी यू, एंड यहाँ पर b रख दिया था. यही किया था ना मैंने. आई थिंक नाउ इट हैज बिकम क्लियर टू यू. यस मैम. ओके, सो दिस इज इक्वल टू, अब b तो कांस्टेंट है हमारा, तो कांस्टेंट को हम बाहर भी लिख सकते हैं, एंड d इसको d बाई डी यू को यहाँ अंदर ले गए, तो ये क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू
बी स्क्वायर और यहाँ से आ गया d2 बाई ओवर डी यू स्क्वायर। समझ में आ गया? ओके, यहाँ तो अब कोई नई बात नहीं लिखी है। यस मैम, गेट इट। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप और आगे करते चले जाओ, लाइक यहाँ पर तुम्हारा बी स्क्वायर आ गया, अब सेकेंड इसमें डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर में, इसी तरह से डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यूब लिखोगे तो बी क्यूब डी थ्री वाई ओवर डी यू क्यूब आ जाएगा एंड सो ऑन। ओके, बट वी डोंट नीड ऑल दीज टर्म्स बिकॉज वी आर डूइंग अप टू सेकेंड ऑर्डर, सो इट्स फाइन विथ अस। ओके, सो ये इसका मतलब ये हुआ, हमें सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है। हमें क्या चीज़ याद रखनी है? हमें याद रखना है दैट डी बाई क्या था वो, डी बाई डी एक्स, ये हमारा है, ये हमें याद रखना है। ये हमारा आया था बी डी बाई डी यू, यही आया ना, ये इक्वेशन 2 से आया था। और हमारा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आया है बी स्क्वायर डी टू बाई ओवर डी यू स्क्वायर। ओके, एंड अगर सिमिलरली करोगे तो ये नीचे और आते जाएंगे तुम्हारे बी क्यूब एंड सो ऑन। ओके, तो ये हमें सिर्फ इतना याद रखना है अभी, और सब्स्टिट्यूशन याद रखना है। अब हम क्या करते हैं, देन अवर इक्वेशन, हमारी इक्वेशन क्या आ जाती है, देन इक्वेशन नंबर 1, ये जो इक्वेशन हमने 1 लिखी है वो किस फॉर्म में आ जाती है, देन दस इक्वेशन 1 becomes, okay, ये किस फॉर्म में आ जाएगी, यू स्क्वायर, तो ये है यू स्क्वायर। ओके, एंड इसको क्या हमने लिखा था, यू स्क्वायर एंड डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हमारा क्या आ गया, ए प्लस बी एक्स तो यू है, तो यू स्क्वायर, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका बी स्क्वायर डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म आ गई हमारी, a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर को तो हमने यू स्क्वायर लिख दिया। इक्वेशन नंबर 1 देखो, a प्लस बी एक्स को यू स्क्वायर लिख दिया, तो यू स्क्वायर एंड डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी जो अभी निकाली है। ठीक है, अब सेकेंड टर्म देखो इक्वेशन 1 की, तो क्या है, प्लस पी, सो प्लस पी यू, हाँ डी यू स्क्वायर होगा, हाँ डी यू स्क्वायर होगा, वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू। सो पी यू, और यहां पर क्या आ जाएगा, बी डी बाई डी यू, राइट। एंड थर्ड टर्म क्या है, ये है हमारी प्लस क्यू बाई, ओके, प्लस क्यू बाई इक्वल टू, अब लास्ट में हमारा था फंक्शन x का, तो x की जगह क्या आ जाएगा, x किसका फंक्शन आ जाएगा हमारा, u माइनस a बाई बी। ओके, ये कहाँ से आया, राइट हैंड साइड पे, ये x इज ए फंक्शन ऑफ x, तो स्मॉल x का फंक्शन है तो u माइनस a बाई बी रख दिया मैंने। ठीक है, नाउ इफ यू डिवाइड दिस होल इक्वेशन लेट अस से बाई बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर है, अगर मैं इसको हटाना चाहती हूँ तो आई डिवाइड दिस होल इक्वेशन, नाउ डिवाइड होल इक्वेशन बाई बी स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखा रहने दे सकते हैं, बट हम इफ यू वांट टू राइट डाउन इन ए क्लीन फॉर्म, ओके, देन दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो यहाँ से तो बी स्क्वायर हट जाएगा, डी टू बाई ओवर डी यू स्क्वायर, ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म, प्लस पी के बाई, एक बी कट जाएगा, एक ही बी आएगा, पी बाई बी के यू डी बाई डी यू, राइट, प्लस क्यू बाई बी स्क्वायर के बाई इक्वल टू 1 ओवर बी स्क्वायर कैपिटल एक्स यू माइनस ए बाई बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब हमारा इस फॉर्म में आ गया, देन वी मेक द सब्स्टिट्यूशन, ओके, दैट u इक्वल टू e टू द पावर z,
एंड देन वी कैन सॉल्व इट बाय द प्रीवियस मेथड जो अभी हमने किया था आज. ओके, so this is a standard homogeneous differential equation now, and now this is now a standard homogeneous differential equation, and now we make the substitution. Okay, and now अब important चीज ये है, now we put or make the substitution. क्या substitute करेंगे? u equal to e to the power z, where what is u? u is a plus bx. Okay, so and then we can solve it by the previous method. Okay, then your equation becomes a linear differential equation with constant coefficient जो अभी हमने solve की थी. So यहाँ पर हम अब जब हम इस फॉर्म में लिख देते हैं तब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं u इक्वल टू e टू द पावर z का, एंड देन आपका जो आपकी जो इक्वेशन आती है वो आपकी आ जाती है z की फॉर्म में, एंड देन आप उसे सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट अस टेक एग्जाम्पल. एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा. So I take this example. अच्छा, रियली में है आज की नहीं है? अच्छा चलो ठीक है. सो ओके, ऑल राइट. ज्यादा लेंदी नहीं हो जाएगा है? ये वाली टैब ज्यादा लेंदी नहीं हो जाएगी? नहीं, करने के बाद तो बहुत सिंपल सी लगेगी. अभी एग्जाम्पल देखोगे आपके बहुत सिंपल से हैं. वो जब जनरल चीज बता रहे होते हैं तो उसको समझाने के लिए ज्यादा टाइम लगता है. जब आप लोग करोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. आपको इतना सारा थोड़ी याद रखना है, ये जनरल फॉर्म थोड़ी याद रखनी है आपको. आप तो क्वेश्चन देखोगे और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उसको. आपको इस फॉर्म में थोड़ी, ये जो फॉर्म मैंने आपको समझाई है अभी आपको ऊपर, ये तो आपको समझाने के लिए बताया ना कि इस तरह से हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं. आपको एग्जाम्पल देख के करना है. एग्जाम्पल में इतना डिफिकल्ट नहीं होता है. देख के तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं ना, ये सब थोड़ी करेंगे. नहीं ना, ये सब नहीं करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे. मैं आपको यही बता रही हूँ ना. आपको समझाने के लिए इतना बताना पड़ता है ना, अदरवाइज ए क्या है बी क्या है वहां पर आपको कैसे पता चलेगा? कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको? तो पहले तो आपको जनरल फॉर्म तो पता होनी चाहिए ना, तभी तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि वो बी की जगह अब a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर है. यहाँ पर लिखा होता मान लो 2 प्लस 4x होल स्क्वायर, तो आप क्या करते? a की जगह 2 रखते, b की जगह आपका 4 होता. तो लेकिन आपको वो अकाउंटिंग रखनी पड़ेगी. जैसे यहाँ पर ये लिखा है जो लास्ट ये लिखी है u स्क्वायर बी स्क्वायर, तो अगर मान लो 4 है वहां पे इस तरह का कुछ दिया है 2 प्लस 4x, तो b की वैल्यू आपकी 4 आ रही है, तो 4 स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में. समझ रहे हो? इसलिए ये आपको जनरल फॉर्म बतानी पड़ती है.